Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Jyoti Education Point. Now, in the today's class, we are going to start with the coordination, the essence of management. This is topic from class 12th Business Studies. Coordination, it means we have to coordinate the different departments of the organization. ठीक है, without coordination we are not able to perform effectively and efficiently. It is not a functions of management. It is not a function of management. In the earlier class we have done the functions of management. The functions of management is planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the functions of management. But in each functions of management we need coordination. It means coordination is the essence of management. We can't able to perform. We are not able to perform efficiently and effectively without coordination. इसीलिए coordination is inseparable. Coordination is inseparable because it required at each and every stage. Now, coordination involves synchronization of different actions or efforts of the various units of the organization. Now let us do the features of coordination. Integrate group efforts. ये जो coordination है ये क्या करता है, ये coordinate करता है ग्रुप के efforts को, इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट्स को, कंबाइन करता है, यूनिफाइड करता है एफर्ट्स को. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और diverse interest into purposeful work activity. Unity of action. Next feature of coordination is unity of action. ये इट मीन्स यूनिटी लेके आता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक हमारा परचेज डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है, और इन ऑब्जेक्टिव के बीच कोऑर्डिनेशन रखना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. If there is no coordination, the organization will suffer. Suffer in the sense कि organization को loss होगा. ठीक है, it act as a binding force between different department and enforce that all action is aimed at achieving the goals of the organization. Purchase department should purchase enough material which are necessary for the production department. Imbalance between these two departments will cause loss to the organization. अगर इन दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा. तो इसलिए ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट उतना ही मटेरियल परचेज करेगा जितना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है. अगर एक्सेस परचेज कर लिया तो मे बी आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाए, मे बी डिस्ट्रॉय हो जाए. देयर मे बी वेरियस केसेस, और बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र. एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. लाइक आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, these are the continuous process, and each and every stage of these process we need coordination, otherwise we will not able to perform efficiently. Management is a continuous process and coordination is associated with all the functions of the management, so it is a continuous process. परवेसिव इट मीन्स कोऑर्डिनेशन जो है हर एक एवरी डिपार्टमेंट पे एवरी डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है, एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है
कि टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर भी रिक्वायर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी रिक्वायर है कोऑर्डिनेशन, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी रिक्वायर है, एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी रिक्वायर है कोऑर्डिनेशन. लाइक हमारी वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड कोऑर्डिनेशन. चाहे हमारी बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है. कोऑर्डिनेशन रिक्वायर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और कोऑर्डिनेशन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही पर्सन की नहीं होती है. ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी इन कोऑर्डिनेशन. एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज इन देयर रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Deliberate function, it means it is a deliberate functions. ये कोई सोच समझ के कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहता. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपल्सरी है. विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कोई भी टास्क अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकते. A manager has to coordinate the efforts of the different people in a conscious and deliberate manner. Cooperation without coordination may lead to wasted efforts, and coordination without cooperation creates dissatisfaction. Cooperation it means कॉर्पोरेट करके चलना. it means कि लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है कि उनको सेल्स इंक्रीज़ करनी है. तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट क्या नाम है सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट को उनका मोटिव क्या होता है, फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना, मनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना. तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, यू कैन जस्ट गिव अ डिस्काउंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5% का डिस्काउंट. बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट 10% का डिस्काउंट. तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होगा और कॉर्पोरेशन भी करना होगा. तो इट मीन्स कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है 5% और मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट हमने देना है, तो दे नीड टू कॉर्पोरेट विद ईच अदर. और इट मीन्स कॉर्पोरेट भी करना है, कोऑर्डिनेशन भी करना है. तो दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को एक मीटिंग करनी होगी एंड दे विल कॉर्पोरेट कि क्या नाम है कि वो एक कह रहा है 5%, एक कह रहा है 10%. तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड इट मीन्स दे विल कम्युनिकेट, अपना अपना व्यूज़ रखेंगे और दे विल कम टू अ कंक्लूजन दैट कि हम सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% का अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं. नाउ देन इससे सेल्स भी इंक्रीज़ होगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लॉस नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन बोथ आर मस्ट. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज. जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, साइज़ कैन बी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे इंक्रीज़ हो गए, या फिर हमारा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर हमारी बहुत सारी ब्रांचेज ओपन हो रही हैं. इट मीन्स कि हमारी बिज़नेस का एक्सपेंशन हो रहा है. जैसे जैसे हमारी बिज़नेस का एक्सपेंशन होता है तो हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा मस्ट रिक्वायरमेंट होती है. As an organization grow in size, the number of people employed will also increase. All individuals differ in their habits, approaches, etc., so that it becomes necessary to coordinate their efforts to achieve the organizational goals. Now, functional differentiation. देखो, as I've told you कि different department के different functions होते हैं एंड उनके भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो उनको भी हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है सो दैट कि हम एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें.
The functions of an organization is divided into different department like purchase department, production department, HR department, finance department, marketing department. All these department have their own objective, or these objective needs to be coordinate so that the organizational objectives can be achieved. The functions of an organization is divided into different department and their objective are also different. Marketing department may also try to increase the sales volume by offering 10% discount, but the finance department may not approve it because loss in revenue. In such a situation, the coordination has a vital role in the integration of the efforts by the above two department. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे. नाउ स्पेशलाइजेशन. देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो स्पेशलिस्ट के लिए तो जितनी भी जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन विल अपॉइंट स्पेशलिस्ट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. बट उन स्पेशलिस्ट को भी क्या करने की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है. दे कांट थिंक कि वो स्पेशलिस्ट हैं तो वो बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे, तो उनको भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. Nowadays, many organizations appoint specialists in different jobs. This lead to conflict. अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, वो बिकॉज स्पेशलिस्ट हैं तो उनके एक मन में ये रहता है कि हम स्पेशलिस्ट हैं तो वाई वी नीड टू कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट करने की क्या ज़रूरत है दूसरे डिपार्टमेंट से. तो इन दैट केस एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफ़र करना होता है. दिस लीड टू कन्फ्लिक्ट as some specialists don't like to take advice or suggestions from the others. So the coordination is required to reconcile their differences. तो उनको क्या करने होते हैं, अपने differences को reconcile करने होते हैं. तो we have done the importance of coordination, growth in size, functional differentiation and specialization. Thank you everyone for watching my videos. Please like, subscribe and share with your friends.